we are going to talk about one of the most important lessons in grammar. If you complete this lesson, if you understand this lesson, be sure you are going to say that yes, this thing you all were missing from the learning life. अगर इस एक चीज को अच्छे से समझ गए तो पूरे लाइफ में बोलोगे हाँ भाई यही चीज की कमी थी जिसके वजह से हमेशा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था. So today we are going to talk about the main concept. From the beginning I have been talking about what is the common structure. The common structure is subject plus small verb plus main verb plus object and at last other words. This is the common structure, and I have told you in our entire life we are going to follow this structure only. In beginners batch also we followed this structure. In basic batch also we followed the same structure. And in the next intermediate batch also we are going to follow the same structure. Means the structure will remain the same in our entire life. Whatever language we are going to learn. Subject, small verb, main verb, object and other words. In which subject, object and other words will never be changed. Subject, object and other words will never be changed. Means once you have completed, once you have learned about subject, object and other words in your entire life, whether you are learning tense, you are learning voice, you are learning narration, whatever you are learning. So in our entire life, subject, object and other words will remain the same. Just we need to understand the use of small verb and main verb. Just we need to understand the use of small verb and main verb. बस हमें पूरे लाइफ में स्मॉल वर्ब और मेन वर्ब का ही यूज मेनली सीखना है कि हम अपने पूरे लाइफ में क्या क्या स्मॉल वर्ब यूज कर सकते हैं और क्या क्या मेन वर्ब यूज कर सकते हैं. अगर हमने यह कमांड कर लिया स्मॉल वर्ब और मेन वर्ब को कैसे यूज करेंगे, अगर यह हम समझ गए, बी श्योर तुम्हारा ग्रामर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. और आज जो हम लोग बात करने वाले बोलोगे भाई पूरे लाइफ में तो हम यही सीखते रहे जो हम आज एक दिन में सीख लिए. सो द यूज ऑफ स्मॉल वर्ब एंड मेन वर्ब, पहले इसका नाम मैं क्लियर कर दूं. वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स एज पर फंक्शन. द फर्स्ट वन इज स्मॉल वर्ब. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब because it helps the main verb. Because of that this is also called helping verb. This is also named as auxiliary verb. Auxiliary के जगह मैं एक न्यू नाम यूज करता हूं, 24 friends or not. 24 friends or not. Small verb का ही यह नाम है 24 friends of not. Whenever we use the name 24 friends of not, we get some information from this name. The first information that we get, there are total 24 small verbs in English grammar. English grammar में 24 small verb है, 24 से 25th नहीं होने वाला, जिसमें तुमने shall, will, is, are, am, was, were, has, have, had, do, does, did, means more than 50% already you have completed. अगर 24 small verbs के बारे में सीख जाओगे तो तुम्हारे पूरे लैंग्वेज का मेन कंसेप्ट क्लियर हो गया. 24 से 25th नहीं आने वाला, बस 24 स्मॉल वर्ब्स के बारे में ही तुम्हें सीखना. दूसरा, दिस इज कॉल्ड द फ्रेंड्स. किसका फ्रेंड्स है जी? नोट का फ्रेंड्स है. क्यों फ्रेंड है? Because combination is so nice between small verb and not. When they come together, it seems they are not two words, but they are a single word.
जब दोनों मिलते हैं, दो वर्ड है लेकिन दोनों मिल के ऐसा लगता है सिंगल वर्ड है, डू नॉट डोंट, डज नॉट डजंट, डिड नॉट डिडंट, शुड नॉट शुडंट, मस्ट नॉट मस्टंट, कैन नॉट कैंट, may not meant, might not mightn't, could not couldn't, will not own, shall not shan't, has not hasn't, have not haven't, had not hadn't। तो दोनों मिल करके ऐसा लगता है कि सिंगल वर्ड हो गया, इसलिए इसको नोट का फ्रेज बोलते। चल कहां कहां यूज है, क्या क्या यूज है, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड मेन वर्ब and this is also called principal verb। स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, मतलब क्या, मेन होते हैं। सो उसे ही कभी कभी मेन वर्ब के जगह पर हम प्रिंसिपल का नाम देंगे, प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब। शुड आई क्लीन दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now we are going to talk about how it works। स्मॉल वर्ब थोड़ा सा जगह छोड़ के रखोगे लास्ट में मेन वर्ब को समझने के लिए। स्मॉल वर्ब, मेन। सबसे पहले डिवीजन लिख लो जी, उसके बाद हम लोग फाइनल बात करेंगे। नंबर 1, डू वर्ब, डू, डज एंड डिड बिलोंग टू दिस। यहां पर कुछ जगह छोड़ करके रखेंगे, कुछ यहां सीखना है, ब्रैकेट में कुछ जगह छोड़ के रखेंगे, हमें सीखना है यहां पे कुछ। Number 2, be verb, is, are, am, was, were are the be verb। 5 sons of B or 5 friends of B it is also called is, are, am, was, were। Number 3, have verb, has, have, had belong to this group। And the last one is modals, shall, will, should, must, ought to, can, could, may, might, need, dare। Sir, would also a modal verb, no? Yes, would, used to। काउंट कर लो, टोटल 24 हुआ या नहीं? यस सर, 24 है हो सर गया। टोटल। सो ये 4 लाइन का जो दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, यह पूरे लाइफ के रूल को कंट्रोल करता है। जितना भी हम लाइफ में ग्रामर सीखेंगे, उस ग्रामर को यह 4 लाइन के स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है। कैसे, अभी धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यह डिवीजन को दिमाग में सेट करना है। क्या क्या डिवीजन है जी? द फर्स्ट वन इज डू वर्ब, द सेकेंड वन इज be verb, the third one is have verb and the fourth one is modals। अब टेंस में जाते हैं। How many tenses are there and which ones? Sir, there are mainly 3 tense: past, future, and present. And all the 3 tenses are divided into 4 groups. Okay, तुमने सही बोला, लेकिन जो पहले तुमने ग्रामर सीखा था, सही ग्रामर सीखा था, उसके हिसाब से तुम बोल रहे हो। मैंने कुछ गलत ग्रामर सिखलाया था बेसिक के स्टार्टिंग में। टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। 4। Yes, sir. मैंने गलत सिखलाया था बेसिक में, बोला था मैं। Yes, yes, sir. गलत ग्रामर करो, बाद में पता चलेगा क्या बेनिफिट है। तो आज पूरा तुमको पता चलेगा उस गलत ग्रामर का क्या बेनिफिट हो रहा है। द फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट, द सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस, द थर्ड वन इज परफेक्ट, Perfect. and the fourth one is perfect continuous। The first one is, Indefinite. the second one is, Continuous. the third one is, Perfect. fourth one is, Perfect. Continuous. और यहाँ Indefinite। सब डिवीजन होगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 प्रकार का। प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, सब में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जोड़ दो। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो तुम्हें गलत ग्रामर सीखना है। सबसे पहले टेंस कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में। Which ones? Indefinite, continuous, perfect and perfect। Perfect. Continuous.
अंडरस्टूड? यह कंसेप्ट को दिमाग में रखना, अंडरस्टूड? Yes, sir. नाउ द फर्स्ट टेंस इज, अब देखो मैजिक यहां से स्टार्ट होता है जो हम कभी नहीं सीखते. द फर्स्ट टेंस इज Indefinite. and the first small verb is do verb. Do The verb. first small verb is do verb. Do verb. So do verb is the small verb of indefinite. Do verb is the small verb for indefinite. अगर तुमसे कोई पूछे indefinite का small verb क्या है तो सिंपली बोलो do verb. Indefinite का small verb क्या है? Do verb. Do verb. Now you know, अब तुम्हें पता है कि भाई डूडस प्रेजेंट है और डीड Past. पास्ट है. सो सिंपली अगर प्रेजेंट पास्ट में इसको डिवीजन किया जाए, ओके, इंडेफिनिट डू वर्ब, देन व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट? डूडस. पास्ट इंडेफिनिट Did. तो आराम से समझ लोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का डूडस हुआ और पास्ट इंडेफिनिट का डीड हुआ. यही तुम लोगों ने बेसिक में सीखा. मैं जो भी आज बतला रहा हूं कोई नई चीज नहीं बतला रहा हूं. जो तुम पूरे लाइफ में यूज करते हो, सीखते हो, याद करते हो, उसका मैं सिस्टम बतला रहा हूं. सो डूडस प्रेजेंट इंडेफिनिट, डीड पास्ट इंडेफिनिट. Past indefinite. Number two tense is Continuous. continuous. Number two small verb is Be verb. be verb. Means be verb is the small verb of continuous. Continuous का कोई भी पूछे small verb क्या है? Be. Continuous का small verb क्या है? Be. Be और verb. be verb बोला जा सकता है be verb. Now you know, अब तुम्हें पता है कि भाई is RM प्रेजेंट है और was were पास्ट है. Past. तुम्हें ये पता है is RM प्रेजेंट है और was were पास्ट है, यह तुम्हें पता है. तो अगर कंटिन्यूअस को प्रेजेंट और पास्ट में कन्वर्ट किया जाए, ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस is RM, पास्ट कंटिन्यूअस was were, present continuous is RM, Is past continuous was were, continuous be verb. अगर continuous बोले तो बस be. Continuous का small verb be verb. Be verb. Present continuous is RM, past continuous was were. Past verb. Number three tense is Perfect. perfect. Number three small verb is Have verb. have. So have is the small verb of perfect. कोई भी पूछे perfect का small verb क्या है, सिंपली बोलो have. Have. तुम्हें पता है has है प्रेजेंट है और had पास्ट है. तो अब perfect का डिवीजन कर सकते हो. प्रेजेंट perfect has have, past perfect had, Had. present perfect has have, Has past have. perfect had. Had. और shall will का यूज हमेशा कहां होता है जी? Future. फ्यूचर. अभी मैं केवल shall will ले रहा हूं, फ्यूचर को अभी मैं केवल ले रहा हूं, shall will ले रहा हूं. बाद में should, must, could क्या यूज है, कैसे यूज है, बाद में डिस्कस करूंगा. अभी पहले 12 टेंस का रूल बिना रटे हम लोग खुद से बनाना सीख रहे हैं. तो सीखना क्या है? 12 टेंस में स्मॉल वर्ब क्या होगा और मेन वर्ब क्या होगा. तो सबसे पहले स्मॉल वर्ब सीख लेते, फिर मेन वर्ब भी सीख लेंगे. चलो फिर से आपने 12 टेंस के स्मॉल वर्ब को फिर से क्लियर करते हैं. द फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट. द फर्स्ट वन इज Indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, And फ्यूचर इंडेफिनिट. Yes. अंडरस्टैंडिंग? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट. पहले नाम सोच लो, उसके बाद हम लोग एनालाइज करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, Past फ्यूचर indefinite इंडेफिनिट. and प्रेजेंट future इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट स्मॉल वर्ब Do does. do does. Past indefinite small verb Did.
Present indefinite do does, past indefinite did, and future indefinite Shall will. shall will. Future जब भी रहेगा shall will रहना ही है. फ्यूचर जब भी रहेगा shall will रहना ही है. सो फ्यूचर इंडेफिनिट shall will. यही तुम लोगों ने बेसिक में सीखा है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस. अच्छे से समझो. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, Is RM. पास्ट कंटिन्यूअस, Was were. फ्यूचर प्लस कंटिन्यूअस. फ्यूचर कंटिन्यूअस कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंस. shall be, will be. अच्छे से सुनो पहले. फ्यूचर प्लस कंटिन्यूअस. अच्छे से सुनो. फ्यूचर continuous means combination of two tenses. So two smaller should be used. As per the name of the tense. टेंस के नाम में ही रूल छिपा है, रटना नहीं है. टेंस के नाम में ही रूल छिपा हुआ है, रटना नहीं है. फ्यूचर प्लस कंटिन्यूअस. फ्यूचर शैल विल कंटिन्यूअस बी. अब बी में इज आर एम वाज वर क्या देंगे या बाद में बात करेंगे. बी बीन बीइंग क्या देंगे बाद में, लेकिन कंटिन्यूअस है तो बी देना है. अगर फ्यूचर है तो शैल विल, बिना शैल विल के फ्यूचर नहीं होगा और बिना बी के कंटिन्यूअस नहीं होगा. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, The sir. next one is perfect. The next one is Perfect. present perfect, past perfect, future perfect. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Present perfect, small verb. Has have. Has Past have. perfect. Had. Now again, future perfect. Future plus perfect. Future के लिए, Shall will. Shall. perfect के लिए have. अब have में कौन सा फॉर्म देंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन shall will नहीं देंगे तो future नहीं होगा और have नहीं देंगे तो perfect नहीं होगा. Clear till now? Yes, sir. The last portion, we are moving to the last portion. That is perfect continuous. Present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. Present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. We are moving to the last step. Perfect continuous. Present perfect continuous. Present perfect, present perfect, present perfect, small verb. Present perfect has a Has have. continuous. Present perfect plus continuous B. Be. अब बी में बी बीन बीइंग क्या देंगे बाद में बात करेंगे, लेकिन बी वर्ब देना पड़ेगा. अगर कंटिन्यूअस है तो बी वर्ब देना पड़ेगा. बी नहीं देंगे तो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता. प्रेजेंट परफेक्ट हैज अ कंटिन्यूअस बी. Be. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट Had. हैड कंटिन्यूअस Be. बी. हैड प्लस बी, हैड पास्ट परफेक्ट एंड फॉर कंटिन्यूअस बी. द लास्ट वन, फ्यूचर perfect continuous. Future perfect continuous. Future Shall will. shall will Shall will. perfect Have. continuous Be. 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 Shall. Combination of three tenses. Combination of three tenses. अब सोच लो, अगर बिना समझे, जो हम लोग जनरली करते हैं, अगर बिना समझे रटोगे यह सब चीज तो 2 महीने 4 महीने पढ़ाई छोड़ दोगे, सब भूल जाओगे. कोई जरूरत नहीं है रटने का. बस कंसेप्ट को समझ लो. रूल क्यों बना उस कंसेप्ट को समझ लो, तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए रूल फिक्स्ड हो जाएगा. क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदरवर्ड्स कभी चेंज नहीं होता. स्मॉल वर्ब मेन वर्ब चेंज होता है. आज हम लोगों ने सबसे पहले सीखा in all the 12 tenses what small verb should be used. बिना कोई चीज रटे टेंस के नाम के हिसाब से कौन सा स्मॉल वर्ब यूज करेंगे, यह आज हमने अभी सीखा. बोलो यहां तक क्लियर है तो बोलो, मैं आगे बढ़ता हूं. Yes, sir. बोलो जी, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. चलो अब आगे की थोड़ा बात करता हूं. नाउ प्रॉब्लम क्या होता है, कभी MV1, कभी MV2, कभी MV3, कभी ING. कितना याद करोगे, कितने दिनों तक याद करोगे, कितना याद करोगे? कोई जरूरत नहीं है. टेंस के नाम में स्मॉल वर्ब छिपा हुआ है और स्मॉल वर्ब के बाद मेन वर्ब फिक्स्ड है.
जब भी हम मॉडल्स का यूज, जो भी मॉडल शैल बी, शुड, मस्ट, मे, माइट, ऑट टू, कैन, कुड, जो भी मॉडल्स अगर यूज करें तो मॉडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। मॉडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म छोड़ करके और कुछ भी यूज नहीं कर सकते। अगर मॉडल्स के बाद बुक में भी अगर MV2 MV3 ING फॉर्म का यूज है उसे काट दो, कभी पॉसिबल नहीं है। जो भी 13 मॉडल्स आर देयर, आफ्टर मॉडल्स ओनली प्रेजेंट फॉर्म, ओनली फर्स्ट फॉर्म, ओनली MV1 will be used. MV2 MV3 ING can never be used after modals. Modals के बाद MV2 MV3 ING कभी यूज नहीं कर सकते, चाहे रूल जो भी हो, उससे मतलब नहीं है। After have only third form is used. जब भी has, have, had का यूज कर दो, only third form is used. MV1 MV2 ING form can never be used after have. Only third form, only MV3, only past participle is used after have. Be verb के बाद be means be, been, being, या खुद अपना is, are, am, was, were, जो भी be verb हो, उसके बाद दो तरीके का verb यूज होता है। अभी तुम लोगों को यूज करना है MV1 प्लस ING। अभी तुम लोगों को यूज करना है, जो बिगनर्स में भी सीखे, is, are, am प्लस ING, was, were प्लस ING। और कभी कभी MV3 का यूज होगा, अभी नहीं, कभी कभी MV3 का यूज होगा। यह MV3 का यूज क्या बतलाता है? B प्लस MV3 इज इक्वल टू पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव का नाम सुने हो? Yes, sir. तो B प्लस MV3 इज इक्वल टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का एक ही रूल है, B प्लस MV3। मैं लगभग जब एडमिशन में लेता हूं, असेसमेंट टेस्ट में लेता हूं, साल में लगभग 2 से 3 हजार में टेस्ट लेता हूं, जिसमें मैं 5 वॉइस देता हूं, वॉइस चेंज करने के लिए, एक्टिव पैसिव चेंज करने के लिए। 2 से 3 हजार कैंडिडेट में शायद ही कभी कभी 1 या 2 ऐसे आते हैं जो 5 का 5 वॉइस सही कर देते। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर लोग वॉइस को बहुत डिफिकल्ट मानते, एक्टिव पैसिव को बहुत डिफिकल्ट मानते। कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट अगर समझ लोगे कुछ भी नहीं है। वॉइस का, पैसिव वॉइस का एक ही रूल है, B प्लस MV3। जब उस फील्ड में मैं जाऊंगा तब बात करूंगा, अभी नहीं। अभी तुम्हारा काम क्या है? 12 टेंसेस को कमांड करना, जिसमें फर्स्ट जो मैं बतला रहा हूं ING फॉर्म, उसको अभी यूज करना है। जब यह कमांड हो जाएगा तो मैं एक्टिव पैसिव के बारे में बात करूंगा। एंड जब भी डू वर्ब का यूज कर दिया जाए तो हमेशा MV1। डू, डज, डिड का यूज जब भी कर दो तो हमेशा MV1। अच्छे से समझो, टेंस के नाम के हिसाब से स्मॉल वर्ब फिक्स्ड है, और स्मॉल वर्ब के बाद कौन सा मेन वर्ब होगा वह भी फिक्स्ड है। डू प्लस MV1, बी प्लस ING, हैव प्लस MV3, मॉडल्स प्लस MV1, यह सारा एक्टिव जो अभी सीख रहे हो उसका फॉर्मूला हो गया। जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करने जाओगे तो सारे रूल्स को बस B प्लस MV3 में कन्वर्ट कर देना, और कुछ भी नहीं है। मीन्स यह जो 4 लाइन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यह टोटल तुम्हारा टेंस का रूल दिखला रहा है, टोटल वॉइस का रूल दिखला रहा है। और जिसका टेंस और वॉइस अच्छा होगा, बोलने के लिए बस 3 इंडिफिनिट्स। पहला वह कमांड करना है, बोलना सीखना है। एक बार बोलना सीख लिया, अब अच्छा बोलना सीखना, तो उसके लिए टेंस एंड वॉइस। उसके बाद नरेशन, ज्वाइनिंग अगर नहीं भी सीखोगे, बातचीत करते करते समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं। उसके बाद यह बैकबोन होता है, टेंस और वॉइस जो है वह बैकबोन होता है लैंग्वेज का। और अगर यह 4 लाइन को अच्छे से समझ गए तो रूल को तुम खुद बनाओगे, रटना नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir.
चलो पैशंस है और पैशंस है, फाइनल करें या नेक्स्ट क्लास में करेंगे? Yes, sir. नेक्स्ट क्लास ठीक क्लास है। नेक्स्ट क्लास में ही फाइनल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ही फाइनल करेंगे बी बीइंग कौन सा वर्ब फाइनली यूज करना है, तो उसके लिए नेक्स्ट क्लास में फाइनल करना अच्छा रहेगा। थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट भी कर लो, Yes, sir. Yes, sir. इनडाइजेशन हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो जितना मैंने बताया उसको अच्छे से डाइजेस्ट करो और नेक्स्ट क्लास में मैं फाइनल टच दूंगा और उसके बाद पूरा टेंस और वॉइस का रूल तुम खुद बना सकते हो बिना रटे। यह मैजिकल वॉन्ड, मैजिकल स्टिक के रूप में तुम्हारे लाइफ में काम आएगा। अगर इस कंसेप्ट को दिमाग में सेट कर लिए तो तुम्हारा जिसको ओवरऑल लैंग्वेज बोला जाता है दैट विल बिकम वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। इसको अच्छे से कंप्लीट करो, कंसेप्ट को समझो। नेक्स्ट क्लास में मैं फाइनल टच दूंगा और उसके बाद हमारा ग्रामर जो है वो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड चलेगा, क्योंकि इसके बाद ग्रामर में और कुछ रह नहीं जाता। ये कंसेप्ट अगर कंप्लीट कर लिए ना तो तुम रूल्स रेगुलेशंस खुद बनाओगे। यस सर। Yes, sir. ओके, सो बाय फॉर टुडे, गुड नाइट एवरीवन, बाय। बाय सर। Thank you, sir. Bye. Bye, sir. Thank you, sir.